बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। यास चक्रवात तूफान से बचाव के लिए राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर समुद्र एवं नदी से सटे क्षेत्रों के पास रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया गया। राज्य सरकार की पहल पर तटीय क्षेत्र में रह रहे लोगों की सुरक्षा रहने के लिए स्कूलों, क्लबों और कम्युनिटी हॉल को अस्थायी राहत शिविर बनाया गया। यास चक्रवाती तूफान से बचाव के लिए राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर समुद्र एवं नदी से सटे तटीय क्षेत्रों के पास रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया गया। राज्य सरकार की पहल पर तटीय क्षेत्र में रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए स्कूलों, क्लबों और कम्युनिटी हॉल को अस्थायी राहत शिविर बनाया गया है। साथ ही सभी लोगों के लिए खाने एवं अन्य जरूरी चीजों की भी व्यवस्था की गई है। बाराबरी विधायक विधान उपाध्याय द्वारा सालनपुर के विभिन्न क्लबों, स्कूलों एवं सामुदायिक हॉल में यश से प्रभावित लोगों के रहने और भोजन की व्यवस्था की है। इसके साथ ही उन्होंने टाली के घरों में रहने वाले लोगों के लिए तरपाल की भी व्यवस्था की। मायथन जलाशय से सटे सालनपुर ब्लॉक का सीधावाड़ी गांव में भी यास से बचाव कार्य जोड़े से किया गया। सीधावाड़ी गांव के अधिकांश ग्रामवासियों की शिकायत है कि भाजपा से आसनसोल सांसद बाबुल सुप्रियो केवल अपने मुंह में कहते हैं कि उन्होंने हमारे गांव को गोद लिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्होंने आज तक गांव के लिए कुछ भी नहीं किया। इस थाने की युवती इंद्राणी सेन ने कहा कि भाजपा नेता सीधावाड़ी गांव को मतदान के समय याद करते हैं। कोरोना महामारी एवं यास तूफान के समय भाजपा के लोग एवं सांसद हमें भूल जाते हैं। सांसद एवं केंद्रीय मंत्री इतनी बड़ी महामारी में कभी भी अपने गोद लिए गांव को देखने तक नहीं पहुंचे। अगर किसी ने हमारे गांव के लिए सोचा या कार्य किया है तो वह एकमात्र तृणमूल कांग्रेस और बाराबनी से विधायक विधान उपाध्याय हैं। हमारे यह गांव डीवीसी मायदान बांध के तट के समीप स्थित है। आज हम लोग इतने बड़े चक्रवात तूफान से डरे थे क्योंकि हमारा अधिकांश घर मिट्टी का है। आज हमारे लिए सालनपुर तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक के महासचिव भोला सिंह ने गांव में राहत शिविर की व्यवस्था की और जिनके पास मिट्टी के घर है उनके लिए अस्थायी आवास और भोजन की भी व्यवस्था की। থাকার ব্যবস্থা সবকিছু করে দেওয়া হয়েছে। আতঙ্কে থাকার কারণটা কি আপনাদের? কেন? এই কাঁচা বাড়ি, কখন কি হবে। আপনার ড্যাম্পের পাশে বাড়ি? একদম ড্যাম্পের সামনেই বাড়ি, কাছেই বাড়ি। জল বৃষ্টিতে অনেকটা সময় বাড়ির সামনে চলে আসে জলটা। তো এইবারে যে যখন রাজ্য জুড়ে সমস্ত জায়গা উত্তাল হচ্ছে, আপনারা এই ড্যাম্পের পাশে থেকে কতটা মানে আনসেফ মনে করছেন? আমরা এখানে ড্যামের ধারে থেকে অনেকটাই আনসেফ মনে করছি, তবু দেখছি বিধানদা আমাদের জন্য অনেক কিছুই করছেন। তো এখানে তো বাবুল সুপ্রিয় আপনাদের এই গ্রামটাকে গোদ নিয়েছিল, তো তিনি কি এই যে দুবার পরপর করোনা দেখা গেল, উনি কি একবার এসছেন? না, এই করোনার মধ্যে উনি একবারও আসেন। কি আবেদন থাকবে আপনাদের? আমাদের এটার জন্য কোনো নেই, কিন্তু ওনাকে তো আসা একবারও দরকার ছিল, যে এটা আদর্শ গ্রাম করে নিয়েছিলেন, কিন্তু একবারও আসেননি। কোনো কাজ হয়েছে সেরকমভাবে? সেরকমভাবে আমরা কোনো কাজ দেখতে পাচ্ছি না। এবং ড্রেন সব অমনি আছে, ড্রেনের জল বাড়ির ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। তো বলেছিল প্রতি বাড়িতে যে সব কিচ্ছু করে দেওয়া হয়নি? না, আমাদের তো আপনাদের মাটির বাড়ি, আপনারা এখন আপনারা যে এই আতঙ্কের দিনে কোথায় আশ্রয় নিচ্ছেন? আমাদের তো এমন নিজেদের কোনো কোথাও যাওয়ার আশ্রয় নেই। বিধানদা যা বলেছে যে কমিটি হলে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে, ওখানে আপনারা থাকবেন, এটাই যত। আমাদের এরকম কোনো অবস্থা করা হয়নি। আপনার নাম? প্রিয়া সেন। কোভিডে বা করোনাতে মহামারী হয়েছে, এই যে আজকে দুর্যোগ মহামারী, এই যে এসেছেন বিধানপত্রে স্টেশনে যে ভোলা সিং এসেছেন, আমাদের খুব মানে হাসি ফুটাচ্ছে এই গ্রামকে, সিধাবাড়ি গ্রামকে। নানা দিক থেকে সহযোগিতা উনি করার জন্য ইচ্ছুক হয়ে এসেছেন। এমনকি ঘর বাড়ি যদি ভেঙেছে আমরা এবারে মানে সিধাবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা, যদি আমাদের কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তো এরা দিন রাত 24 ঘন্টায় এই ভোলা সিং বা বিধানপত্রে স্টেশনে নিয়ে আসছেন সিধাবাড়ি গ্রামে। আচ্ছা, এই গ্রামটা তো এখানকার সাংসদ তথা কেন্দ্রমন্ত্রী গোদ নিয়েছিলেন, তো
তো ওনারা কিছু করেছেন কাজকর্ম মনে হচ্ছে না, আপনার? উনি সেরকম কিচ্ছু করেন নাই। যে শুধু ভোট দিয়েছিলেন তাও না, আজ পর্যন্ত উনি যে কোভিড-19 বা করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় যে ভোলা সিং বা বিধান উপাধ্যায়ের স্টেশনে যে এসেছেন, উনি তার বিরুদ্ধে মানে কিচ্ছু করে যায়নি আমাদের বাবুল সিং। এই আজকে তো একটা বিপর্যয়ের দিন, হ্যাঁ, যেখানে পরপর দুবার কোভিড হলো, আজকে ঝড়ের ব্যাপার সব জায়গায় দেখা যাচ্ছে, কিন্তু বাবুলকে কি আপনারা দেখতে পেয়েছেন একবারও? না, নিজের যা ঠিকানা ঠিক নাই, তো আমাদের গ্রামকে উনি কী দেখবেন? তা সত্ত্বেও কেন জিতছেন উনি কেন? এটা ঠিক দেখুন, পাবলিক এখনো পর্যন্ত বুঝে নাই যে প্রত্যেকটা মানুষকে সীতাবাড়ি গ্রামকে কেন বাসকেরিয়া সাংসদ বা দেদুয়া আমাদের পঞ্চায়েতের অধীনস্থ আমাদের ভোলা সিং বা বিধানপত্র এখনো পর্যন্ত করে যাচ্ছে, সব কিছুই করে যাচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম জিতেন্দ্রনাথ সেন। এসছো কেন? আমাদের তো কাঁচা বাড়ি আছে আর নদীর ধারে আমাদের বাড়ি, তো এই ঝড় তো। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा चितरंजन क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन भेजे जाने के बाद यह आरोप सामने आ रहा है कि बिना किसी सामाजिक दूरी एवं सरकारी नियम का पालन के टीकाकरण किया जा रहा है एवं यह भी बात सामने आई कि कितने टीके कब और किसको लगाना है, किसी भी बात की जानकारी सरकारी विभाग को नहीं दी जा रही है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा चितरंजन क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन भेजे जाने के बाद यह आरोप सामने आ रहा है कि बिना किसी सामाजिक दूरी एवं सरकारी नियमों का पालन किए टीकाकरण किया जा रहा है। क्षेत्र के नेता संजीव शाही, इंद्रजीत सिंह और पिंटू पांडे ने शिकायत की कि कितने टीके कब और किसको दिए जाने हैं और किसको टीका लगाया जाना है, किसी भी सरकारी विभाग को इसकी जानकारी नहीं दी गई। साथ ही राज्य सरकार के दिशा निर्देश पहले चालकों सहित व्यापारियों का टीकाकरण किया जाना है, लेकिन उनका टीकाकरण क्यों नहीं हो रहा? बिना किसी रजिस्ट्रेशन के 18 से 45 साल के लोगों की भीड़ जमा हो रही है, जिसमें क्षेत्र में कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना है। अस्पताल प्रशासन खुद ही टीकाकरण की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। श्रमिक नेता इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हम आज अस्पताल गए और मांग की कि सरकारी नियमों के अनुसार टीकाकरण किया जाए, अन्यथा इसे बंद कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि चितरंजन शहर में अब तक कोरोना के कारण लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी है। टीका सभी के लिए जरूरी हो गया है और क्षेत्र में जल्दी टीका सबको दिया जाना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ आए थे हॉस्पिटल में, जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइंस आया था, जिसके तहत बोला गया था कि जो भी बाजार में जो जिनका दुकान है, दुकानदार है और उनके जो कर्मचारी है उनको, और जो ट्रांसपोर्टर है, जो ऑटो ड्राइवर है, ट्रक चलाते हैं, जो भी है उनको वैक्सीनेट किया जाएगा 18 से लेकर 44 साल तक वालों को। लेकिन पिछले कई दिनों से हम लोग के पास लगातार इसका शिकायत आ रहा था कि उनके नाम पे कुछ कर्मचारी के बच्चे, कुछ उनके परिवार के सदस्य वैक्सीनेशन करवा रहे थे। हम लोग उसको नज़रअंदाज किए जा रहे थे लगातार कि चलिए जो भी ले रहा है किसी को तो मिल रहा है। लेकिन कल शाम में 3 बजे के बाद जब सारा चितरंजन के लोग लॉकडाउन में अपने घरों में थे, उस समय यहाँ पे जब हम लोग यहाँ आते हैं, एक हमारा साथी का पत्नी का देहांत हुआ था, उस सिलसिले में आए हुए थे, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों लोगों का भीड़ लगा हुआ है। जब हमने सोचा कि यहाँ कोई दूसरा कार्यक्रम चल रहा होगा, लेकिन जब पता करने गए तो पता चलता है कि वहाँ पे वैक्सीनेशन किया जा रहा है 18 से 44 साल के बच्चों तक का। ये चितरंजन में किसी लोगों के पास जानकारी नहीं थी, सिर्फ यहाँ पे एक यूनियन है, उसके खास करके जो उनके जो नेतागण हैं, उनके बच्चों के लिए ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जिसका कल हम लोगों ने प्रतिवाद किया था। आज दोबारा जब हम यहाँ, हमारा जो लोग जो यहाँ कल के आवाज़ सुन के जो यहाँ पे आए हुए थे, आज दोबारा आते हैं तो वहाँ पे उनको बोला जाता है कि अगर वैक्सीनेशन का जो भी कार्यक्रम है, आप जाके INTUC NFI के नेताओं से पूछिए। हॉस्पिटल का जो व्यवस्था है चरमरा गया है। यहाँ पे जो भी जो कर्मचारी है, कुछ खास यूनियन के साथ जुड़ाव करके हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इसी का डिमांड लेके हम आए हुए थे कि CMO के पास कि आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए। ऐसे जो लोग जो सिर्फ यूनियनबाजी यहाँ कर रहे हैं और लोगों को, चितरंजन के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रख रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। CMO ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई होगा और आगे से जो भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा उसमें ट्रांसपेरेंसी लाया जाएगा, सबको पता चलेगा कि किस तरह वैक्सीनेशन किया जाएगा। स्टाफ काउंसिल मेंबर, एरिया वाइस वार्डन को भी इन्वॉल्व करने का उन्होंने बात कहा है। तो कल जो ये घटना हुआ है तो उसमें CMS ने क्या कहा? कल जो घटना हुआ है उन्होंने कहा है कि जो हो गया सो हो गया, उसको आप लोग बात को आगे मत बढ़ाइए। कल स्थगित कर दिया गया। हाँ। नहीं तो वो क्या CMO के परमिशन से हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन के परमिशन से हो रहा था?
या जीएम के परमिशन से हो रहा था या ब्लॉक लेवल से परमिशन से हो रहा था, किसके परमिशन से हो रहा था? वो आपको तो पहले बताया कि यहाँ पे अव्यवस्था फैला हुआ है। ठीक। दुकानदार और वेंडर के नाम पे जो वैक्सीन आया हुआ था, यहाँ के एक खास यूनियन के लोगों के परिवारों को इंजेक्शन कर लगाया गया है। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कुल्टी थाना चौरंगी फाणी अंतर्गत बीसीसीएल एरिया 12 नंबर अंतर्गत दामगोड़िया कोयरी के बोड्रा खदान के मोचीपाड़ा बस्ती में ब्लास्टिंग होने के कारण कुछ दिनों पहले धंसान हुई थी, मगर अभी तक मामला नहीं सुलझा। कई बार बैठक होने के बाद भी और कोयरी बंद पड़ी है गांव वालों के विरोध प्रदर्शन के कारण। वहीं जब तूफान को लेकर प्रशासक इलाके का दौरा करने पहुंचे और बस्ती की परेशानी से अवगत हुए तो उन्होंने समस्या का हल निकालने का जल्द से जल्द आश्वासन भी दिया। कुल्टी थाना चौरंगी फाड़ी अंतर्गत बीसीसीएल एरिया के अंतर्गत दामागोड़िया कोयरी के वोड्रा खदान के मोचीपाड़ा बस्ती में कुछ दिनों पहले धंसान होने से कई घरों में दरारें पड़ गई थी और कई घर धंस गए थे, जिसके बाद गांव वालों ने पुनर्वासन की मांग पर धरना प्रदर्शन कर कोयरी बंद करवा दिया था। उत्पादन ठप होने के बाद बीसीसीएल मैनेजमेंट और गांव वालों के बीच कई बार बैठक भी हुई, पर मामला जस का तस बना हुआ है। गुरुवार याश तूफान के बाद की स्थिति का जायजा लेने नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी पहुंचे। उन्होंने बताया कि याश तूफान की वजह से किन किन लोगों को नुकसान हुआ है उसे देखने यहां पहुंचे तो पता चला बोड्रा कोयरी में ब्लास्टिंग होने के कारण कई मकानों में दरार पड़ गई है। श्री चटर्जी ने दरार पड़े मकानों को देखकर कहा कि बीसीसीएल के अधिकारी और पीड़ित लोगों को लेकर एक बैठक की जाएगी ताकि समस्या का हल निकले। उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से हर संभव सहयोग पीड़ित परिवार के साथ किया जाएगा। उनके साथ प्रशासक सदस्य मीर हासिम, नगर निगम के अन्य अधिकारीगण एवं दामागोड़िया कोयरी के कार्मिक प्रबंधक सुमंतो राय, मैनेजर धर्मेंद्र तिवारी के अलावा अन्य अधिकारी, स्थानीय लोग उपस्थित थे। मालूम हो कि कोयरी बंद होने से प्रबंधन को प्रतिदिन लाखों का नुकसान हो रहा है। দেখলাম গরিব মানুষগুলোর সত্যিকারে খুব অসুবিধা রয়েছে মানুষগুলো। আমরা তো এসেছিলাম যে এখানে ইয়াস নিয়ে, তো ইয়াস নিয়ে আসার পরে সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখলাম যে আরেকটা সমস্যা এখানকার চলে এলো, ঘর বাড়ি জমি জায়গা এসিএ বিসিসিএল এই সমস্ত নিয়ে। তো আমরা যারা কোল ইন্ডিয়ার কর্তৃপক্ষ রয়েছে তাদের আমরা অনুরোধ করলাম যে আপনারা আসুন, তাহলে একটা আলোচনা করি, আগে শুনি, এবং যারা এখানকার লোকাল লোক তাদেরও বললাম আসার জন্য। কালকে একটা প্রথম পর্যায়ে আলোচনা হোক, তারপর দেখা যাক কীরকমভাবে কী করা যায়। না, চেষ্টা তো করতে হবে, চেষ্টা ছাড়া তো কোনো কাজ হবে না। আমরা এসেছিলাম এখানে ইয়াসের মানুষজনগুলো ঠিক মতো খাবার দাবারের ব্যবস্থা হয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্য। তার জন্য আমাদের সঙ্গে রয়েছে হাসিম, রয়েছে আমাদের কর্পোরেশনের আধিকারিকরা রয়েছে, আমাদের এখানকার স্থানীয় লোকাল লোকেরা রয়েছে। কর্পোরেশন দেখা যাক আমরা কী করে যাই। আমাদের ধরুন অনেক মানুষের বাস্তুহারা মানুষের বাড়ি তৈরি করে দিয়েছি, যদি আমরা সুযোগ সুবিধা পাই আমরা নিশ্চয়ই করব। মানে আপনাদের তরফ থেকেও সহযোগিতার হাত থাকলে আমাদের নিশ্চয়ই আমাদের সহযোগিতা, আমাদের তো মানুষের সেবার জন্যই তো আমাদের কর্পোরেশন। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। याश तूफान के गुजरने के बाद बांकुड़ा जिला शासक राधिका अय्यर सड़क पर उतरकर स्थिति का जायजा ले रही हैं। गुरुवार बांकुड़ा 1 नंबर ब्लॉक के विभिन्न सुरक्षा शिविरों में पहुंचकर जिला शासक ने लोगों से बातचीत की और उनका हाल भी जाना। याश तूफान के गुजरने के बाद बांकुड़ा जिला शासक राधिका अय्यर सड़क पर उतरकर स्थिति का जायजा ले रही हैं। गुरुवार बांकुड़ा 1 नंबर ब्लॉक के धलडांगा मोड़ के पास जगदल्ला गोड़ाबाड़ी महात्मा गांधी स्मृति विद्यालय, जहां के लोगों के लिए शिविर बनाया गया था, वहां पहुंचकर जिला शासक ने लोगों से बातचीत की और उनका हाल जाना। इस शिविर में आश्रय ली हुई वृंदा माल ने कहा कि हमारा मिट्टी का घर है और तूफान की वजह से इसके ढहने की आशंका थी, इसीलिए हमें शिविर में रहना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिला शासक खुद हमारी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर रही है। इसके साथ खाने की भी व्यवस्था की गई। वहीं जिला शासक राधिका अय्यर ने संवाददाताओं के सामने कहा कि याश तूफान को लेकर जिला को अलाउड किया गया था। बांकुड़ा जिला में करीबन 1 लाख लोगों ने शिविर में तूफान से बचने के लिए आश्रय लिया हुआ था। हालांकि अभी तक जिला में किसी की मौत की खबर नहीं मिली है। वहीं प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार विद्युत परिसेवा को लेकर क्षेत्र में समस्याएं जरूर आई हैं। 50 ट्रांसफार्मर के टूटने की फिलहाल जानकारी मिली है। इसके अलावा जंगल में कई पेड़ गिर पड़े हैं।
कई मिट्टी के घर भी बारिश की वजह से ढह गए हैं। अभी तक पूरी रिपोर्ट नहीं मिली है। 3 दिनों के अंदर सारे रिपोर्ट मिल जाएंगे। उसके बाद जिला में कहां और कितना नुकसान हुआ है इसका अनुमान लगाया जाएगा। वहीं नदी के बढ़ते जल स्तर पर जिला शासक ने कहा कि हम लोग सतर्क हैं। अभी तक बड़जोड़ा, मानाचर, इंदास, सोनामुखी नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित दूसरे स्थानों पर ले जाया गया है और अब इसके बाद जो परिस्थिति सामने आएगी उसका मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। विद्युत परिसेवा बहाल करने के सवाल पर जिला शासक ने कहा कि इस पर काम चल रहा है। क्षतिपूर्ति की रिपोर्ट आने पर वीडियो और महकमा शासक के पास भेज दिया जाएगा। गांव के रहने वाले एक वृद्धा शिमलापाल की मौत पर जिला शासक ने कहा कि प्राथमिक रिपोर्ट में आया है कि हृदय गति रुकने के कारण उनकी मौत हुई है। আমাদের বাড়ি কাঁচা বাড়ি ঝড় এসেছে, ওই জন্য ঘর জল পড়ছে, ওই জন্য এখানে এসেছি। ছেলে পুলে নিয়ে ওখানে মাটি কাঁচা বাড়ি তো তাহলে ভিজে গেছে সব, তাহলে কি করে ছেলে পুলে সর্দি কাশি তো আতঙ্ক হয়ে যাবে, তার জন্য এখানে এসেছি। মানে ভয়ে আতঙ্কে চলে এসেছে? ভয়ে আতঙ্কে এসেছি। এখানে কি রকম খাওয়া দাওয়া সব ব্যবস্থা? খাওয়া দাওয়ার সব ব্যবস্থা বাড়ি ঘরের ব্যাপারে আজকে তো ডিএম এসেছিলেন, জানালেন? কি বললেন? ব্যবস্থা করবো, হুম, ব্যবস্থা করবো। কি নাম আপনার? মালিকানা মায়। আমরা ঝড় আর বৃষ্টি যে হয়েছে, সাইক্লোনের যে ওয়ার্নিং আমরা পেয়েছি বাঁকুড়ার জন্য যে অরেঞ্জ অ্যালার্টটা আমরা পেয়েছি ও অ্যান্ড স্টেট গভর্নমেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা এখানে অ্যারাউন্ড 1000 রেস্কিউ শেল্টার্স যে আছে ওর ব্যবস্থাটা করেছি আজ। আর পরশু রাত্রে থেকেই আমরা ইভ্যাকুয়েশনটা শুরু করে দিয়েছি। তো আমাদের এখানে আছে পুরো জেলাতে অ্যারাউন্ড 1 লাখের কাছাকাছি লোক রেস্কিউ শেল্টারে আমরা ইভ্যাকুয়েট করতে পেরেছি। এই জন্যই একটাও আমরা মানে প্রাণটা মানে কারো যায়নি। ওইরকম যেখানে যেখানে বাড়িটা যে মাটির বাড়ি আছে ওর সবাইকে আমরা রেস্কিউ শেল্টারে নিয়ে এসেছি। এখন অবধি আমাদের যে ড্যামেজ রিপোর্ট যে পেয়েছি, এখন তো আরও সময় লাগবে পুরো পরিষ্কারভাবে জানার, কেন কি কালকে তো হয়েছে, তো এই জন্যই। বাট প্রিলিমিনারি রিপোর্ট যে আমরা পেয়েছি, অনেকটা ইলেকট্রিক পোলগুলো ভেঙে গেছে, ট্রান্সফরমার 50টা ভেঙে গেছে। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। यास चक्रवात के कारण अजय नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि कांसा कृष्णपुर होकर अजय नदी बहती है। पश्चिम बर्धमान एवं बीरभूम से जोड़ने वाली अजय नदी पर एक अस्थायी ब्रिज है, जिसके कारण भय की स्थिति है। वहीं गुरुवार सुबह से ही कांसा थाना की पुलिस की कड़ी नजरदारी चल रही है ताकि लोगों को जान मान का नुकसान न हो। चक्रवाती तूफान यास अब झारखंड की ओर बढ़ चला है, जिससे झारखंड में जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश की वजह से अजय नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है। अजय नदी कांसा के कृष्णपुर से होकर बहती है। पश्चिम बर्धमान को बीरभूम से जोड़ने में अजय नदी का महत्वपूर्ण योगदान है। अजय नदी के ऊपर बने पुल की वजह से ही बीरभूम जिला के लोग पश्चिम बर्धमान और पश्चिम बर्धमान के लोग बीरभूम आ जा सकते हैं। हालांकि अजय नदी का पानी बढ़ जाने से यान चलाचल बंद कर दी गई है। कांसा थाना पुलिस के साथ साथ बीरभूम के इलम बाजार थाना की पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। स्थानीय ग्राम पंचायत के उप प्रधान ने बताया कि तूफान की वजह से जो बारिश हुई है उससे अजय नदी पर असर पड़ रहा है। पानी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। नतीजा पंचायत की तरफ से लोगों को सतर्क किया गया है और जो लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं उन्हें अपना घर छोड़कर शिविर में आने का आदेश दिया गया। আমাদের পঞ্চায়েত থেকে সবই ব্যবস্থা নেওয়া আছে, ঠিক আছে। ইয়াস যে ঝড় এসেছে বা সাইক্লোন উঠেছে সেটা ঝাড়খণ্ডে গিয়েছে, তার কারণে হয়তো অজয় নদীর জল বাড়তে পারে। প্রশাসন তরফ থেকে আমাদের ভারী যানবাহন গাড়ি চলাচল বন্ধ করেছে। পঞ্চায়েত থেকে আমরা সব প্রস্তুত আছি, হ্যাঁ, যে কোনো অসুবিধা হলে তাতে আমরা সমাধান করব। হ্যাঁ, ওইটা কাজ চলছে,
কাজ এখন হয়তো লকডাউনের 2-1 দিন বন্ধ আছে, লকডাউন পর থেকে আবার কাজ চালু হবে। আমি বিদবারে উপপ্রধান, কৃষ্ণপুর সংসদের প্রার্থী दिलीप हारी। निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रिया और चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया है, यानी 30 मई के बाद राज्य में जो अनलॉक की प्रक्रिया हो रही थी वो अब नहीं होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान नियम में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में बढ़े कोरोना के मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने 16 मई से 30 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। पुलिस प्रशासन ने सख्ती से इसका पालन करवाया, जिसका सकारात्मक असर देखने को मिला।
लॉकडाउन के दौरान कोरोना मामले में आ रही कमी को देखते हुए गुरुवार राज्य सरकार ने और 16 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अब यह लॉकडाउन 15 जून तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लॉकडाउन का ऐलान की है। राज्य में दूसरी बार लगाई जा रही लॉकडाउन को लेकर कोई नए नियम नहीं बनाए गए हैं। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रखने का ऐलान इस बार भी किया गया है। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और इस दौरान किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। सभी दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक जैसे खुली रहती थी वैसे ही खुलेंगी। यानी लॉकडाउन के दौरान जो नियम पहले लागू किए गए थे वही नियम अब भी लागू रहेंगे। सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान तो पहले ही कर दिया था और 30 मई के बाद इस लॉकडाउन हटना था, यानी कि अनलॉक होने की प्रक्रिया होनी थी। लेकिन इस बार फिर राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है, यानी अब लॉकडाउन 15 जून तक रहेगा। स्थिति कुछ ऐसी रही है इन कुछ दिनों में कि लोग परेशान हो रहे थे। लॉकडाउन लगा हुआ था, उन्हें खाने का वस्तु नहीं मिल रही थी, खाने के सामान नहीं मिल रहे थे। राज्य सरकार भरपूर कोशिश कर रही थी कि जो गरीब है, असहाय है, उन लोगों को खाने की कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही कई संस्था भी आई थी आगे, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, खाने के सामान नहीं मिल रहे हैं, कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ रहा है। और इसके बावजूद फिर से एक बार लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, तो आम आदमी पर कहीं ना कहीं इसका असर तो पड़ेगा ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कोरोना को हराना है, क्योंकि जिस रफ्तार से चुनाव के बाद कोरोना ने राज्य में अपना पैर पसारना शुरू किया था और इसे रोकने के लिए राज्य सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा था। और एक बार फिर से जो सकारात्मक संकेत मिले हैं उसी के आधार पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। ये लॉकडाउन 15 जून तक एक बार फिर से रहेगा और इसके बाद देखा जाएगा कि अनलॉक की प्रक्रिया चालू होगी कि नहीं। अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं, हम सड़क पर खड़े हैं रानीगंज मोड़ के स्कूल मोड़ के सामने, और ये अगर तस्वीर आपको दिखाते हैं तो ये शाम के वक्त की तस्वीर है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत गाड़ियां जो है शाम के वक्त चलनी शुरू हो गई है, लेकिन इससे पहले सुबह और दोपहर का जो नज़ारा था कहीं भी गाड़ियां नज़र नहीं आ रही थी, लोग नज़र नहीं आ रहे थे। अभी कुछ लोग हैं, हम उनसे एक बार बात कर लेते हैं। राज्य सरकार जो है हमारे पर फिर से लॉकडाउन बढ़ा दी है, 15 जून तक लॉकडाउन क्या कहना है? सरकार की मंशा है लॉकडाउन से खुश है? हम लोग लॉकडाउन चलना छोड़ना तकलीफ रख करके तकलीफ रख के खुश है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, 15 जून तक लॉकडाउन रह रहा है, इसका क्या कहना है? यही कहना है कि सब तो ठीक है, बट यही है गरीब लोग का बहुत मार हो रहा है। इतना हम लोग का बहुत बंद है, हम लोग का काम बंद है, काम भी बंद है, ट्रेन नहीं चल रही है, परेशान है। लेकिन राज्य सरकार कह रही है कि कोरोना की रफ्तार में जो गति है वो कम हुई है, जो केसेस है वो कम हो रहे हैं। तो क्या ये डिसीजन सही है? एक तरह से सही है, मगर गरीब लोग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग के लिए मिडिल क्लास के लिए काम तो चल रहा था, अभी बंद है हम लोग का, मगर सुबह में इससे मैं यही बोलना चाहूँगा कि सरकार लॉकडाउन आगे ना बढ़ाएं और थोड़ा सा गाइडलाइन को ध्यान रखें। तो आपने देखा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार का जो निर्णय है वो सही है, लॉकडाउन होना चाहिए क्योंकि कोरोना की रफ्तार में कहीं ना कहीं कमी आई है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मिडिल क्लास है, हमारी दुकानें बंद हो चुकी है लॉकडाउन की वजह से, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस मामले में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत तो हो रही है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम कोरोना के आंकड़े पर ध्यान दें तो कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा था बहुत ज़रूरी था राज्य में लॉकडाउन लगाना। और लॉकडाउन लगाने की वजह से जो सकारात्मक संकेत मिले हैं, यानी कोरोना की रफ्तार में गति जो है वो धीमी हो गई है, मामले कम हो रहे हैं। और इसी को देखते हुए एक बार फिर से राज्य में लॉकडाउन लगा दिया गया है और ये 15 जून यानी इस बार 16 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। तो स्थिति एक बार फिर से वही रहेगी। मैं बता दूं कि नियम जो है वही रहेंगे, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। इसके
उसके बाद सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। यानी नियम में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, नियम वही है, बस लॉकडाउन की जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है। हमारे सामने एक कार्ड बढ़ा दिया गया है, 15 जून तक करने दिया है। खैर सबकी अपनी अपनी रजामंदी है, अपनी बात है, लेकिन कुछ लोग जो है वो अभी भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना सही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन हमारे लिए सही नहीं है क्योंकि उनकी दुकानों पर असर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट पीबी न्यूज। रानीगंज के बरदही स्थित विकास नगर का रहने वाला रॉबिन गोराई ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। घटना के बाद से रानीगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। रानीगंज के बरदही स्थित विकास नगर इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने समाज को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक 4 साल की बच्ची जिसके खाने और खेलने की उम्र है, उसके साथ बलात्कार कर इस छोटी सी उम्र के पड़ाव में ही बड़ा बनना सिखा दिया। हैवान रॉबिन गोराई, जिसकी उम्र 42 साल है और पेशे से तांत्रिक है, उसने इस मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस तरह की दरिंदगी करते हुए रॉबिन गोराई ने ये तक नहीं सोचा कि आखिर इस 4 साल की मासूम बच्ची के मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या उस बच्ची को खुलकर जीने का हक नहीं है? क्या वो लड़की है इसलिए खुली छूट है कि उसके साथ कोई कुछ भी कर सकता है? इस तरह के घिनौने कारनामे को अंजाम देने वाले समाज के लिए न सिर्फ कलंक है, बल्कि आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा देने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। रानीगंज बोरो 2 के प्रशासक पूर्ण शशि राय ने भी ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को फांसी की सजा देने की बात कही है। उन्होंने आगे कहा है कि मैंने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए रानीगंज थाने में इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही फरार अपराधी रॉबिन गोराई को तुरंत ढूंढकर गिरफ्तार करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने इस घटना की जानकारी लेने के लिए विकास नगर पहुंचे, जहां सबसे पहले आरोपी रॉबिन गोराई की मां से बात की गई। रॉबिन गोराई की मां पुष्पा गोराई ने खुद स्वीकार किया है कि इस तरह की घटिया हरकत उसके बेटे ने की है और पुष्पा ने इस हरकत के लिए अपने बेटे को सजा देने की मांग भी की है। इसके साथ ही एक स्थानीय युवक विपतानंद दास का कहना है कि बुधवार जब वो अपने मां से मिलकर लौटा था, तभी उसने देखा कि पीड़ित बच्ची घर से रोते हुए निकली और कुछ दूर जाते ही जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद परिवार वाले उस बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां बलात्कार की पुष्टि की गई। इसके बाद तो उन लोगों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। साथ ही थाने में लिखित शिकायत आरोपी रॉबिन गोराई के खिलाफ की गई। हालांकि इस घिनौने कारनामे को अंजाम देने के बाद ही रॉबिन गोराई फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। स्थानीय लोगों की माने तो पीड़ित बच्ची का परिवार और रॉबिन गोराई का परिवार दोनों ही विकास नगर में भाड़े के घर में रहता है। हालांकि रॉबिन गोराई का अपना घर कॉलेज पाड़ा में है, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ भाड़े के घर में रह रहा है। ঘটনা ঘটেছিল কাল কবে হয়েছিল? যারা দেখেছে ওই পাশে কোনে ঘরটাতে যাও, খবরটা পাও, চলো আমি যাচ্ছি। কি হয়েছিল কি? চলুন, ওরে দেখেছে, আমি তো দেখি না ভাই। আপনি কি শুনেছেন? আমি ওদের মুখেই শুনলাম। কি শুনলেন? ওই ছেলেটা রেপ কেস করেছে। আচ্ছা, আর কি? কার ছেলে ওটা? ও পাশে ঘরে ভাড়া থাকে। কার মেয়ে মানে পাশে ওদেরই লোক হয়। চলুন আমি আমার ছেলের নাম রবিন গোরাই। রবিন আপনার ছেলে? আমার ছেলে। তে ওটা শুনলেন কটার সময়? এই 3টা 3:30 কালকে দুপুরবেলায়। আচ্ছা, তো আপনার ছেলে কোথায় এখন? ছেলে কোথায় গেছে খুঁজে পাইনি তো। আচ্ছা আচ্ছা, যে যাকে মানে যার সাথে এরকম ভুল কাজ করেছে সেই মেয়েটার কি নাম? বাচ্চাটা ওই তো বলবে তো, ওই তো চলুন। আপনি তো জানেন? আমি জানি না, ওই আছে, ওদের লোক আছে। মানে আপনি স্বীকার করছেন এই কাজ ভুল করেছে? হ্যাঁ, স্বীকার তো করতেই হবে। দোষ করলে তো স্বীকার তো করতেই হবে। বলো, আমার তো লুকালে তো হবে না ভাই। আমি জুনটা দেখিনি সেটা কেন বলবো? জুনটা দেখেছি সেটা বলছি। তো আপনি এটা আপনার ছেলের প্রতি বিচার হোক এটাই চাইছেন তো? কি মানে বিচার হোক সেটাই তো চাইছেন? ভুল কাজ করেছে যখন স্বীকার তো করতে হবে। বলো না না, ওর তো মানে বিচার হোক এটাই তো চাইছেন আপনার ছেলের? কি বিচার? শাস্তি তো হোক এটা চাইছেন তো? হ্যাঁ, শাস্তি হবে। কই কি নাম আপনার? কি নাম? আমার নাম পুষ্প গোরাই। বাড়ি কোথায় আপনার? বাড়ি আমার নিজের বাড়ি আছে কলেজ পাড়া, এখানে আমি এখানে ভাড়া থাকি। আচ্ছা, এই জায়গাটার কি নাম? এই বলুন, দাঁড়িয়ে বিকাশ নগর। ঘটেছিল দাদা, দেখুন আমি তো বাড়িতে ছিলাম না, আমি গিয়েছিলাম মায়ের বাড়ি। তো এরা সব ওইদিকে বসেছিল, আমি যতটুকু এসে দেখেছি ওইখানে। তারপর আসার পর আমি দেখছি এরা বসে আছে ওইদিকে, আমি এদিকে গেলাম, দেখছি আমি এখান থেকে দাঁড়ায় দিলাম, আমার নেশা লেগেছিলো, মাল ডাল খাই। আমি ওখানে দাঁড়ায় পড়ে দেখলাম টিভি চলছে। তারপর আর জানি না
তারপর আমি ঘরে গেলাম, তারপরে কিছুক্ষণ পর ওই দিকের মেয়েটা ওইখানে উঠাইছে বাচ্চাটাকে, ওইখানে বসেছিল, ওরা সবাই গল্প করছিল, বাচ্চাটাকে উঠাইছে, তখন দেখেছি ওইসব। কোথা থেকে উঠেছে বাচ্চাটা? এইখানে দুয়ার থেকে, মানে দুয়ারে এসে পড়ে গেছে। মানে কোথা থেকে পড়েছে বাচ্চা? ওই দুয়ার থেকে। তো বললো ওরা কি ওই দুয়ার থেকে ওইখানে এসে দাঁড়াতে পারলো না, পড়ে গেল। আচ্ছা, মানে কোন ঘর থেকে বেরিয়েছিল? এই ঘর থেকে। ওই ঘর থেকে বেরিয়ে ওখানে পড়ে গেছে। হ্যাঁ। আর তার ভেতরে কে ছিল? ভেতরে তো ও ছিল, আর বলছে নাকি বাচ্চা ছিল। আর ভেতরে নাম কি তার? ওই তার রবিন গোড়াই নাকি। কি কাজ করতো? ওই ঝাড়ফুঁক করে, দেখাশোনা করে। হ্যাঁ, দেখাশোনা করে, ঝাড়ফুঁক করে। ঝাড়ফুঁক করে, মানে তান্ত্রিকের কাজ করতো। হ্যাঁ। তারপর আজ জানি না দাদা, আমার নেশা ছিল। যখন বাচ্চাটা পড়ে যায় তারপর কি ঘটনা? তারপরে এরা উঠাইছে, তারপরে দেখেছে, তারপর বাড়িওয়ালাতে বলতে গেছে, তারপরে বলতে যাওয়ার পর এবার এসে পরে এখানে ওকে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, তারপর আমি মাঠ দিয়ে গেলাম, নেশা যেতেছিলাম, মাঠ দিয়ে গেলাম। তারপর ও এসে চিল্লাচিল্লি করছে, বলছে এমনি কেন করলি বা কি। তো তারপর বাচ্চাটাকে হসপিটাল নিয়ে যাওয়া হয়? হ্যাঁ, তারপর নিয়ে গেছে ডাক্তারখানায়, কোন ডাক্তারখানা নিয়ে গেছে জানি না, ডাক্তারখানা নিয়ে গেছে। আপনার নাম কি? আপনার নাম? আমার নাম বিপদ তরণ দাস। জায়গাটা কোন? এটা বিकासनगर बोले तो। रोबिन गोराई तो वही लोग से ज़्यादा पूछिएगा, हम लोग तो इधर। क्या सुने अभी तक? हम लोग यही सुने कि छोटा बच्चा के साथ वो गलत किया। अच्छा, वो बच्चा का क्या नाम? वो भी हमको पता नहीं है। कल कितने बजे का घटना है? ये परसों का घटना है। परसों का घटना है। अच्छा, आप लोग मतलब यहीं रहते हैं क्या? हम, मेरा ही घर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी हुआ। पूरा नाम बोलिए। लक्ष्मी महतो। घटना, एक लड़का रेप किया उसको। अच्छा। 4 साल का लड़की है, बस उतने ही जानते हैं हम। अच्छा, उनका नाम? उनका नाम हम नहीं जानते हम। कुछ क्या काम करता था या कुछ? वो तांत्रिक, पूरा तांत्रिक करता है बोला तो। बस हम लोग थ्रू ही जितने दिन पुलिस आया था यहाँ पे? पता भी नहीं पुलिस आया, लेकिन हमको पता नहीं है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है लाछो। पूरा नाम बोलिए। लाछो ताती। अच्छा, ताती। इस जगह का क्या नाम? इस जगह का नाम है, हम लोग सालडा विकासनगर में रहते हैं हम लोग। ঘটনার বারে ওই পাশেই জানবে। আপনি কি শুনলেন? আমরা খালি এইটুকুই শুনেছি যে একটা বাচ্চা 4 বছরের মেয়েকে কি করে দিয়েছিল, তারপরে হসপিটাল গেছে, তারপর থেকে আর যা জানে ওরাই জানে। তারপরে আমি তো এখানে থাকি, ওরা ওখানে থাকে পাশে। আচ্ছা, যে করেছে তার নাম? রবিন গোড়াই। আর বাচ্চাটার নাম জানেন? না, বাচ্চাটার নাম জানে। বয়স কত? বয়স ওই 4 বছর হবে। अभी कहाँ है बच्चा? कहीं लेके गया सवेरे। कहाँ ले गया? আপনার নাম কি? আপনার নাম? আমার নাম প্রণব সরকার। এই জায়গাটার কি নাম? বিকাশনগর। এই শাস্তি তো তারা মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। এইসব ব্যক্তিদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত। একটা 4 থেকে 5 বছরের বাচ্চা মেয়েকে যদি ধর্ষণ করে, রবিন গোড়াই বলে যে ছেলেটি আর কি, যার বয়স 40 থেকে 42-এর মধ্যে, ওই শালডাঙ্গা বিকাশনগরে, ভাষাই বলা যায় না। আমাদের বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি নিজে রানিগঞ্জ থানায় বলেছি যে অবিলম্বে খুঁজে বার করে তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে। এই ধরনের জঘন্যতম অপরাধকে আমরা কোনো রকম প্রশ্রয় দেব না, এটা আমরা মানে বলছি পুলিশ প্রশাসনকে, এবং যেখান থেকে হোক খুঁজে বার করে নিয়ে আসতে হবে তাকে। পরিবারটির সাথে আমরা আছি, পরিবারের সাথে আমাদের বিধায়ক মাননীয় তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। আমরা তার পরিবারের সমস্ত রকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पानागढ़ दार्जिलिंग मोड़ के पास लॉरी के धक्के से 5 लोग घायल हो गए, जिसमें एक को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया, जबकि 4 का इलाज दुर्गापुर महात्मा अस्पताल में चल रहा है। गुरुवार सुबह पानागढ़ दार्जिलिंग मोड़ के पास लॉरी के धक्के से 5 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बीरभूम से पानागढ़ बाजार जाने के दौरान एक लॉरी नियंत्रण खो बैठी और रास्ते में खड़ी एक मोटर बाइक में धक्का दे मारी, जिसमें कुल 5 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को पानागढ़ ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए ले जाया गया। डॉक्टर अंकन मुखर्जी का कहना है कि सभी घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जिनमें एक को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया, जबकि बाकी 4 लोगों को बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर महात्मा अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की खबर मिलते ही काकसा थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंची और लॉरी को जब्त कर ली। वही घटना के बाद से चालक और खलासी फरार बताए जा रहे हैं। पानागढ़ बंधन बैंक यूनिट के मैनेजर चिरंजीत मंडल ने बताया कि रोजाना की तरह गुरुवार सुबह भी वो काम के सिलसिले में बाहर निकले थे, तभी पानागढ़ ग्राम मोड़ के बैंक से निकलकर वो दार्जिलिंग मोड़ में बने चाय की दुकान में चाय पी रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित लॉरी चाय की दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों में धक्का दे मारी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घायलों के नाम अनिमेश दास, समीर मंडल, देवेश सिंह, पलाश घोष, राधा कुमुंद गोस्वामी हैं।
घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति देखी जा रही है। अलका श्रीवास्तव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। चितरंजन की रहने वाली एक महिला में ब्लैक फंगस पाया गया है, यानी अब आसनसोल में भी इस फंगस ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज में फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है। आसनसोल में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। चितरंजन की एक महिला को ब्लैक फंगस होने की आशंका है। महिला को आसनसोल जिला अस्पताल लाने के बाद अस्पताल के डॉक्टरों को अंदेशा हुआ कि चितरंजन निवासी एक महिला को फंगस है। जानकारी के अनुसार चितरंजन नीमतल्ला की निवासी एक महिला 14 मई को कोरोना से संक्रमित हुई थी। इसके बाद उसे चितरंजन के केजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पिछले कुछ दिनों से उसकी आंख के तलवे काले पड़ने लगे थे। ब्लैक फंगस की आशंका होने पर परिजनों ने महिला को आसनसोल जिला अस्पताल लाया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला को ब्लैक फंगस से संक्रमित होने की लगभग पुष्टि कर दी और फिर उसे इलाज के लिए बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। इस विषय पर जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने बताया कि चितरंजन के नीमतल्ला निवासी एक महिला के बीमार होने के बाद 14 मई को कस्तूरबा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद उसका इलाज अस्पताल में चल रहा था। इसी बीच उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पाए गए। बुधवार को महिला को अस्पताल लाया गया और यहां आने के बाद डॉक्टरों ने जांच की, जिसके बाद उसके ब्लैक फंगस होने के लक्षण देखे गए। ब्लैक फंगस की आशंका होने के बाद महिला को बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। क्योंकि आसनसोल जिला अस्पताल में ब्लैक फंगस के इलाज की सुविधा न होने की वजह से संदिग्ध मरीज को इलाज के लिए नोडल अस्पताल के रूप में बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। একটা পেশেন্ট, মহিলা পেশেন্ট, বছর 40 বয়স, আমাদের এই চিত্তরঞ্জনের এদিকেই বাড়ি। তো আমাদের কাছে এসেছিল ওরা ওই কস্তুরবা গান্ধী যে হসপিটাল আছে চিত্তরঞ্জন, ওখানে চিকিৎসা করিয়েছিল। রেকর্ড দেখে যা বোঝা গেল ওনার কোভিড হয়েছিল, পোস্ট কোভিড, এবং সঙ্গে ডায়াবেটিসও আছে, এবং চোখটা কালো দেখে ওরা আমাদের ইমার্জেন্সিতে অ্যাটেন্ড করেছিল। তো আমরা আমাদের ডাক্তারবাবুদিকে দেখালাম, 2-3টে স্পেশালিস্ট, চোখের ডাক্তারবাবু, ফিজিশিয়ান সবাই দেখলেন আর কি। দেখে পরে এদের একটু সন্দেহ হলো যে সাসপেক্টেড এটা মিউকোরমাইকোসিস হতে পারে। তো যার ফলে আমরা এই পেশেন্টটাকে আমরা বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে রেফার করেছি। যে ওই পেশেন্টটা আমাদের বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজেই আমাদের নোডাল মেডিকেল কলেজ আর কি। তো ওকে আমরা সমস্ত কাগজপত্র করে ওখানে রেফার করেছি। পেশেন্ট অলরেডি বেরিয়েও গেছে এবং বিষয়টা আমাদের সিএমওইচ স্যারকেও হোয়াটসঅ্যাপে জানিয়েছি, ফোনেও জানিয়েছি বিষয়টাকে। স্যার এখানে টেস্ট হলো? হ্যাঁ, এখানে টেস্ট করা হয়েছিল। টেস্ট বলতে আমাদের ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসিস হলো। উনি তো অন্য হাসপাতালের পেশেন্ট ছিলেন আর কি, কোভিডের সময় অন্য জায়গায় দেখাতেন, সেই জায়গা থেকে আমাদের এখানে এসছেন আর কি দেখাতে। প্রথম টেস্ট বলা যেতে পারে? এর আগে তো আমরা কখনো পাইনি। এর আগে পেশেন্টের অবস্থা কেমন আছে? এমনি স্টেবল আছে, এখনও তো স্টেবলই আছে, অন্য কোনো প্রবলেম নেই। চোখটা কালো আছে এবং ব্যথা কমপ্লেন করছে আর কি। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। एनडीआरएफ की टीम के सदस्य गुरुवार रानीगंज के दामोदर नदी के तटवर्ती इलाके का सर्वेक्षण किए। ये लोग यास तूफान के बाद बढ़ रहे नदी के जलस्तर से परेशान लोगों की मदद करने पहुंचे हुए थे, जिनका स्वागत रानीगंज मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों ने किया। राष्ट्रीय आपदा सुरक्षा टीम के सदस्य रानीगंज के दामोदर नदी के तटवर्ती इलाके का सर्वेक्षण किए। ये टीम यास तूफान और बारिश के बाद नदी के बढ़े जलस्तर के दौरान लोगों की मदद के लिए आए हैं। उनका स्वागत रानीगंज मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों ने किया। सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में भले ही ये चक्रवाती तूफान इस क्षेत्र में नुकसान नहीं की है, लेकिन इसके प्रभाव से झारखंड बिहार इलाके में जबरदस्त बारिश की संभावना है। टीम के असिस्टेंट कमांडेंट संजय प्रसाद शर्मा ने बताया कि हम लोग मल्टीपर्पज डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में जाने जाते हैं। आपदा चाहे बारिश की हो या तूफान की, हम लोग उसमें काम करने के लिए सक्षम हैं। जिला शासक के निर्देश पर बारिश और नदी में बढ़े जल धारा की संभावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने दामोदर नदी के तटवर्ती इलाके में रहने वाले लोगों से मिले, जिसमें बल्लभपुर, नुपुर, मदनपुर, दमलिया, तिराट क्षेत्र है। इलाके में वर्तमान समय में पुराने पेड़ पौधे से होने वाले नुकसान को चिन्हित किया गया और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को शेल्टर होम में पहुंचाया गया। शर्मा ने कहा कि हम लोगों के पास इतना अधिक उपकरण है कि ऐसे आपदाओं के समय रास्ता जाम, बिजली खंबे गिरने से होने वाले नुकसान को जहां सहायता करते हैं, वहीं टूटे हुए मकानों में सुरक्षित लोगों को बाहर निकाल लेते हैं। सूचना के मुताबिक अधिक बारिश झारखंड क्षेत्र में होने से दामोदर नदी में बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जा रही है। मायथान डैम से भी अधिक मात्रा में जल छोड़ने की सूचना है।
इससे तटवर्ती और निचले इलाके के लोगों को हटाया जा रहा है। दूसरी ओर मारवाड़ी युवा मंच के सलाहकार राजेश जिंदल, आयुष झुंझुन एवं प्रतीक मोड़ ने एनडीआरएफ टीम के साथ ग्रामीणों को पावरोटी बिस्किट खिलाया। उन्होंने बताया कि मंच हमेशा से ही सेवा के क्षेत्र में आगे रहा है। कोरोना महामारी के प्रथम चरण से ही ये मंच सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है। वर्तमान में आई आपदा को देखते हुए मंच हर संभव मदद के लिए तैयार है। कल हमारा यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीएम सर से बात हुई थी, उनके साथ मेरा मीटिंग हुआ था। तो उनका मेन फोकस था कि जो हमारी ये दामोदर रिवर है, इसका जो है किनारे वाला जो भी विलेज हैं, तो कई जगह पर जो है मतलब उसमें पानी भरने की आशंका है। जैसे मैंने कई क्षेत्र उसके निर्देशानुसार कई गांवों का मतलब दौरा किया, जैसे नूपुर विलेज, और मैं वहां जाकर के देखा तो सचमुच में वो एरिया जो है मतलब पूरा पानी उसमें भरने का संभावना है। यदि पानी उसमें का लेवल बढ़ जाता है रिवर में, तो मैं और यहाँ के ब्लॉक डेवलपमेंट के जो ऑफिसर्स थे उनके साथ जाकर के हमने वो दौरा किया और वहाँ के लोगों को मैं अपनी टीम के साथ गया था, लोगों को समझाया और समझा करके फिर वो जो कच्चे मकान में थे उसको वहाँ से निकाला और निकाल करके फिर जो शेल्टर बनाए गए हैं उसके लिए सुरक्षित था, जैसे प्राइमरी स्कूल था, वहाँ पर उसको जो है मैंने वो भेजा उन लोगों को। हम लोग यहाँ पर जैसे उसको एवैक्यूएट कर रहे हैं। अगर कहीं फ्लड सिचुएशन आ जाता है तो वहाँ पर उसको जो है फ्लड में कहीं पर वो उसका घर सबमर्ज हो जाता है, तो वहाँ से भी उसको हम अपने बोट के द्वारा निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कहीं रोड ब्लॉकेज हो जाता है तो हमारे पास कई तरह के कटिंग इक्विपमेंट हैं, उसकी मदद से हम लोग जो है उसको रोड को क्लियर कर रहे हैं और किए भी हमने कई जगह। उसके अलावा फिर जी जैसे कहीं बिल्डिंग क्लैप्स हो जाता है, उसमें कोई आदमी या कोई दब जाता है तो उसको भी हम लोग जो कटिंग करके उसको निकाल सकते हैं। इस तरह से मल्टीपर्पज़ है। किसी भी तरह का डिजास्टर से अगर कोई नुकसान होता है तो हम उसके लिए सक्षम हैं। हमारे पास हर तरह का इक्विपमेंट है उसको कपअप। मेरे से संपर्क करने के लिए मेरे पास जो भी जैसे यहाँ के वीडियो सर हैं, मैं उनको नंबर दे के रखा हूँ। साथ ही साथ ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर के लिए जो अभी कंट्रोल रूम बनाया गया है उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो मतलब या पुलिस स्टेशन में भी हमारे जहाँ भी हमारे से अभी तक कॉन्टैक्ट हुआ है, मैंने सब जगह अपना कॉन्टैक्ट दे करके रखा है। उसके माध्यम से आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जैसे भी हमको सूचना मिलेगा, हमारा टीम हमेशा अलर्ट मोड में रहता है, तुरंत जो है हम वहाँ पर पहुँचेंगे। मेरा नाम संजय प्रसाद शर्मा, मैं असिस्टेंट कमांडेंट हूँ और हमारे साथ अभी एक टीम है। साथ ही साथ मतलब यहाँ वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में एक और टीम हमारा डिप्लॉयड है जो कि NIP में है। इसके अलावा जो भी जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को लगा कि हमारा टीम का रिक्वायरमेंट है तो सब जगह मतलब पूरे ऑल ओवर बंगाल में NDRF की टीम डिप्लॉय है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज़। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए PB न्यूज़। नमस्कार।